During the government of Dr. Manmohan Singh, when he was the Prime Minister, तो certain import restrictions were imposed. उसमें कुछ कंडीशन था कि जिन लोगों का कैपिटल वाला है उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, उन्होंने उसका बेनिफिट लिया. But after some times, then same house asked that we have to prove it is a labor intensive industry, and then they have given the presentation. It was proved that the textile is a labor intensive industry. Then they have spoken to the Chief Minister of Madhya Pradesh. That time Shivraj Singh Chauhan was the Chief Minister of Madhya Pradesh, and the Chief Minister was convinced by that house that we are the leader in the textile industry. We will invest the money in your area, and this much revenue in the form of taxes will be there. This much employment we will give you, and this much economic growth will be in your credit. But subject to the condition, you will give this at a concessional rate. Land will be given at a concessional rate. So many times you must have heard that the Modi has given land to so and so business houses in Gujarat and other part. मेरा किसी political से कोई relation नहीं है, वैसे quote कर रहा हूँ. But sometimes for the establishment of the new units we have to do. तो उन्होंने उनको land दे दिया concessional rate पे. Big part was given. Then they have spoken to the banker that we are the leader in the bank industrial industry, textile industry, and we would like to do something for the economic development and the social development of the economy. And the Honorable Chief Minister is quite kind to us, and he has allotted land at a very concessional and nominal rate. So bank has granted them loan at the rate of 7%. And that time the rate of interest were not less than 10%. Clear? Then again they have spoken to the government, sir, we are doing this just for economic development of this country. But you know that this is our projection above management की, इसलिए मैं आपको एक case study बता रहा हूँ. And if you will give us some subsidy, we will be able to do better. And government has given a subsidy of 6%. So at what cost they are able to arrange the funds? Only 1%. And what is their contribution? Actual contribution क्या हुआ? That is another issue. तो बिजनेस में वही ये सारा गेम इस तरह का चलता होता है. और ये कैसे करते हैं? अब सारे लोग अपने पैसे से बिजनेस नहीं करेंगे. आपने देखा कितने बड़े बड़े लोग बैंकक्रप्ट होके भाग गए, कैसा हुआ? वो सभी लोग दूसरे पे करते हैं. और जब आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमको ये भी देखने को मिला कि विद द यूज ऑफ द डेट्स द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट. क्लियर? तो वो सारे पार्ट में हमको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आपको दोनों कैपिटल मिक्स करके चलना होता है. बट फ्रेंड्स, द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे आर ऑफ two types. First, I am going to discuss the comparative financial statements. ठीक है. And second, I am going to discuss the cash flow statements. दो लेक्चर हैं, कंटिन्यू में रहेंगे तो इजिली हो जाएंगे, और दोनों से आपको आराम से क्वेश्चन मिलेगा. अगर आप कोई भी पिछला क्वेश्चन उठाएंगे तो मिल जाएगा. और जब हम पीपीटी देखेंगे तो थोड़ा सा आप इसको इंटरेस्ट लेके देखेंगे, इसलिए मैंने टैबलेट से अटैच किया. बेटा आज ले लो मेरे से, जब मर्जी ले लो, मेरे पास सारा है. आप मुझे नंबर दो, मैं उस पर डाल देता हूँ. क्लियर? आप अपने ग्रुप में शेयर करो. मैंने बोला था कि मैं मैडम को दे देता हूँ, तो एक एक देना मैडम को अच्छा नहीं लगता, फिर वो सीनियर फैकल्टी है, ठीक है ना, सारा देखना पड़ता है. देखो भैया, जब हम बेटे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे, yesterday we were talking about the three compulsory statements: the statement of income and expenses, means trading and profit and loss account. Second part, we were talking about the
Statement of assets and liabilities means balance sheet, and third statement we are talking about the cash flow statement. These three are mandatory to be prepared. Clear? And why to prepare these statements? हमने कल इसका भी बात किया था, because it is necessary to be recorded. Each and every things must be on record. ठीक है ना? कंपैरिजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए सारे के सारे उसके मेरिट्स अपने यहाँ पर डालने हैं. When we are coming to this part of the financial statement, again the question is कि what should be the qualities in a good financial statements. तो उसका भी हमने पहले बात किया था. इकोनॉमिक होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और एज पर लॉ होना चाहिए. वो भी हमने बात किया. So now when we are coming to this topic of this financial statement, this say कि statement ऐसा नहीं कि जो आपकी मर्जी आया आपने उसको बना दिया. No, this financial statement should be a systematic process. It should follow a systematic process. जैसे हमने कहा कि we will do the bookkeeping, then we will go for the classification. Classification के बाद क्या किया था बेटे? Summarization. Then we have gone to the analysis and interpretation. So it is a systematic process. Income statement बनाया. First of all, what we did, we have recognized the revenue. इधर ओनली कैश, कैश और क्रेडिट बोथ. तो उसको हमने रिकॉग्नाइज किया, तब हमने उसके यहाँ पर किया. तो यहाँ पर दूसरी एक सिंपल बात बार बार बोलने का जरूरत नहीं है, that we will take into account only those statements which are in terms of money, which can be measured in terms of money. तो यहाँ पर कहता है कि it includes the statement of profit and loss, balance sheet and cash flow statement. तो कहता है कि ये जो स्टेटमेंट बनाई जाती है इनमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा. So what is the relationship in the first? In the case of the trading and profit and loss account means we are going to compare the revenue with the expenses. And what is the relationship in case of this balance sheet? It is going to show the amount of assets and liabilities. And what is the relationship in the cash flow statements? Basically, I am concerned how we are able to arrange the cash. How we are able to manage the cash. देखो, हमने कल बात किया था कि we can purchase the goods on credit, we can sold the goods on credit. Our business may be in profit, but we are not having any cash. Are we in position to run the business without cash? It is not possible. So cash is one of the most important component. तो इसका मतलब ये भी हुआ भी कि हमको बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी देखने पड़ेंगे और सिर्फ कैश की बात नहीं होती. I have to frame my credit policy. So I have to see the credit policy of my suppliers also. समझते नहीं समझते, वो मुझे कितना दिन देंगे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, बहुत सारी चीजें हैं जिनके बेस पे मुझे यहाँ पर डिसीजन लगाना होता है. तो यहाँ पर ये तीन बातें थी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. इनकम में हमने एक्सपेंसेस और इनकम को देखा, तो उसमें क्या है हमारे पास. सेकंड में एसेट्स और लाइबिलिटीज, और थर्ड में तीन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट किया. दैट पार्ट वी विल डिस्कस थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब ये कहते हैं why to prepare these statements if my objective is just to know the profit and loss and the assets and liabilities. Why to follow such a long process? भाई ये इतना आसान नहीं है. We have to appoint the number of the accountant, then we have to appoint the chartered accountant, CF etc. ठीक है ना, और बड़ा हैवी पैसा देना पड़ता है. तो जब मेरे पास सॉफ्टवेयर तो ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, परंतु है. बेसिकली क्या होता है भी, ये करंट फाइनेंशियल स्टेटस को बताएगा. Financial statements are going to reflect the current financial status of the company. What is the amount of gross profit? What is the amount of net profit? What are the assets? What are the liabilities? Clear? वो सारा हमको बताएंगे. And what was the company's operating results from the period? देखो दो तरह के प्रॉफिट होते हैं बच्चे. एक होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स. हमने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, सेल करने से एसेट से प्रॉफिट लिया, वो बिजनेस के प्रॉफिट नहीं है भैया, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम से. So we are basically concerned for the operating profits, but we can't say that we can ignore the non-operating income. If there are operating and non-operating both are there and proportion is good, that is healthy sign. But our main concentration should be upon operating income. ये जो हमारा बेसिक काम है. और how did the companies obtain and use the cash during the period? आपके पास कैश आ जाता है तो आप उसको कैसे यूज करते हैं? सपोज मैं कहता हूँ आप एटीएम से 3 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. आपने ट्रांजेक्शन किया तो फिर किससे ट्रांजेक्शन करना चाहिए आपको, पेमेंट किससे करना चाहिए भैया? पेटीएम वगैरह दूसरे से करो, कैश को मैनेज करो अपने पास, ताकि आपको 3 से 4 बार पैसा विड्रॉ ना करना पड़े. क्लियर ना? तो उसी तरह से बिजनेस में भी हमारे पास जो कैश होता है, ईच एंड एवरी रिसोर्स इज ऑलवेज लिमिटेड. ईच एंड एवरी रिसोर्स इज ऑलवेज लिमिटेड. कुछ भी ज्यादा नहीं होता फ्री में. फ्री में अगर आपको लगे ना एयर फ्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वाटर है, बिल्कुल नहीं है. सो एवरी रिसोर्स इज लिमिटेड. जो कैश आएगा वो भी लिमिटेड आएगा. क्यों? एक तरफ जब कैश आएगा
रिसोर्सेज से, चाहे वो इक्विटी शेयर है, डिबेंचर से, प्रेफरेंस से, जिससे भी है, तो दूसरे एंड में वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। और जब हम इन्वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग टर्म, तो उसके रिटर्न एकदम से नहीं आते भाई, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। रिटर्न कब की होती है, फ्यूचर की होती है। और कल हमने एक बात और किया था, रिस्क एंड रिटर्न, मोर रिस्क मोर रिटर्न, तो वो भी हमको एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द कैश। एंड एक वर्ड होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है वेयर देयर वी आर हाईली सेटिस्फाइड, मींस वेयर देयर वी आर नॉट विलिंग टू मेक एनी चेंज। तो कैश में भी हमने उस पे यहाँ पर उसमें करके जाना चाहिए। अब ये बैलेंस शीट बनाया आपने, बैलेंस शीट क्या था बेटे, इट वाज अ समरी ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट आई शुड कीप इन माइंड दैट 5 कंपोनेंट में से 3 इसके थे, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। एसेट्स किसको बोला था हमने, anything which have the future economic value and owned and controlled by us. Liabilities are obligation towards outsiders, और equity our obligation towards the shareholders, investors. तो इसको 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। और इसी तरह से जब हम बैलेंस शीट बनाया, तो वी आर बेसिकली कंसर्न व्हाट आर द सोर्सेज, हमने पैसा कहां से लिया, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस, उसको कहां कहां पर आपने यूटिलाइज किया। व्हाट आर द कंपनी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, हमारी आज की डेट में भाई देखो, कल हमने बात किया था कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने कौन सा कंपोजिशन लिया, ओनली लॉन्ग टर्म, एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वी हैव टेकन लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। तो किसी का 10 रुपया हो चाहे किसी का 100 रुपया हो, गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी छोटी छोटी ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, तो वो भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और हमारा ये भी ध्यान होना चाहिए व्हाट आर द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, हमारी नेट एसेट्स कितनी होती है। एसेट साइड में जो कुछ सारा शो किया जाता है, क्या वो एक्चुअल में एसेट्स होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। आपने वहां पर फिक्टिटियस एसेट्स भी शो किए होते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में शो किया होता है, तो एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं होता, हमारे लिए एसेट नहीं है। वी हैव फॉर एग्जांपल इवन गुडविल वी हैव टू राइट ऑफ दिस ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स, नॉर्मली हमको इनको टाइम टू टाइम करना होता है। देन वी हैव द इनकम स्टेटमेंट्स, उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था दैट वी ऑल आर इंटरेस्टेड टू नो द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाउ मच गुड्स आर परचेज्ड एंड हाउ मच गुड्स आर सोल्ड, उसका भी हमको पता चल जाता है। और फिर अभी थोड़ी देर के बाद हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल से सुनना। एक बच्चा है, बच्चे के ओवरऑल मार्क्स आए 70%, कितने मार्क्स है उसके, 70%। और बच्चा कहता है जी मुझे मेडिकल चाहिए, मैं एमबीबीएस में जाना है। तो नॉर्मली हम सोच के चलते, एक साइकोलॉजी होती है कि नहीं नहीं भाई, जो बच्चे बहुत हाई वाले हैं वो मेडिकल में जाएंगे। फिर हम उसने कहा भी चलो दिखाओ तुम्हारे 9th में बायो में कितने नंबर थे, आई कम्स टू नो 90, in 10th 90 plus, 11th 90 plus, plus 2 90 plus, overall percentage 70. It means he is good in biology, he is fit for medical also, he can go in the medical, समझते हैं। तो इसी तरह से बिजनेस में भी हमको बहुत सारी चीजों में डिसीजन लेना होता है। अगर आपको एक एग्जांपल याद हो, जो हमने बोला था कि 1 लाख का प्रॉफिट किया, सेल किया, 20,000 का प्रॉफिट किया, 5 लाख का सेल किया, 80,000 का प्रॉफिट किया, और फिर आपने बोला था ये अच्छा नहीं हुआ, जबकि इंक्रीज था। तो हमने क्या किया था बेटे, वहां पर कंपैरिजन किया था, ठीक है ना। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये है आपका टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें कुछ टूल्स है हमारे पास, जैसे है रेशियो एनालिसिस। कौन सा है, रेशियो एनालिसिस। भाई जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं। तो डॉक्टर जाके क्या करता है, सबसे पहले सिम्टम्स पूछता है आपसे, और सिम्टम्स देखने के बाद क्या करता है, ही विल रिकमेंड सर्टेन टेस्ट। तो सभी को एमआरआई, सबको तो ऐसा वो नहीं लिखता ना, सबको अलग अलग लिखता है। और अगर किसी टेस्ट में कुछ ना आए तो वो फर्दर लिखता है, फिर उसको डायग्नोज करना है। सेम उसी तरह से हमको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को डायग्नोज करना है। हमको क्या करना है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को डायग्नोज करना है कि वेयर वी आर गुड और वेयर वी आर लैकिंग, चलिए। तो उसके लिए हमको कई तरह के अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। अभी जो मैं टेस्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, इट इज नोन एज कंपैरेटिव टेस्ट, इट इज नोन एज कंपैरेटिव टेस्ट, क्लियर। और कंपैरिजन के अलग अलग मेथड होते हैं भैया, जैसे अभी मैंने एक बताया ये है। और आप में से कुछ बच्चे होंगे सीबीएसई के, कुछ हिमाचल के, कुछ पंजाब के, कुछ हरियाणा के, कुछ आईसीएसई बोर्ड के, तो नंबर तो सबके अलग अलग होंगे, परंतु स्ट्रेंथ के बेस पे उसके ऊपर तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो उसके भी फॉर्मूला बनते हैं भैया।
तो इसी तरह से फिर हमने जब ये कहा इनकम स्टेटमेंट में, तो अगेन आई हैव यूज्ड द वर्ड रेवेन्यू, I have used the word revenue, expenses, and then by way of comparing the revenue with the expenses, I will reach at the level of net profit or loss. Clear? And why I am interested to reach at the profit of net profit or loss? I am accountable. I am accountable to the investors. They have invested the money for return, so I have to give the return. समझ में? परंतु कई बार क्या होता है बेटा, ये ध्यान से सुन लेना, एक कंपनी है एंड दो दो ड्रम होते हैं बेटे, कहाँ है? अच्छा, Sir, your sound is not clear. अर्न किया, तो ये दो चीजें हमारे पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी एंड बी कंपनी, इनकी अर्निंग पर शेयर है बेटे 18 रुपीज, इसकी भी है 18 रुपीज, क्लियर? और इसका डिविडेंड पर शेयर है 20 रुपीज और इसका डिविडेंड पर शेयर है 16 रुपीज। तो इनमें से कौन सी कंपनी अच्छी लगेगी आपको? इनमें तो दोनों बराबर लग रही है, तो ये जो डिविडेंड यहाँ पर दे रही है 20, ये एक बिग क्वेश्चन है कि व्हाई दे आर गिविंग डिविडेंड मोर देन अर्निंग पर शेयर, क्लियर? बट लेट्स मेक इट बिट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, इट इज 70 रुपीज, बी अर्निंग पर शेयर इज 70। तो बेटा डिविडेंड तो एक वीक कंपनी भी ज्यादा दे सकती है, दे सकती है नहीं दे सकती है? हमें क्या एनालाइज करना है कि what is the earning per share? If the earning per share is more than dividend per share, it is again healthy side. तो हम क्या करते हैं, some part of the profits may be transferred into retained earning. Retained earning क्या हो बेटे? Part of undistributed profits. क्या हुआ ये? Part of undistributed profit, यहीं से किसने बोला था एक बार, रिजर्व में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। Now the question arises, now you all are the shareholders, why you are interested to sacrifice for your profit? उसका रीजन होता है बेटे, if the rate of return of the company is better than the market rate of return, then we will be ready that we should go for the expansion. We should go for the expansion and we will be ready to get less amount in form of dividend. ठीक है? But either the company's health is good or bad, उसमें डिविडेंड से बेटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं अर्निंग पर शेयर। उससे बेटर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? अर्निंग पर शेयर होगा, क्लियर? क्योंकि डिविडेंड वीक कंपनी भी ज्यादा दे सकती है, तो यहाँ पर कंपैरिजन हम यहाँ पर करके चलते हैं। तो इसी में जो स्लाइड है आपके पास, यहाँ पर ये बताना चाहता है कि भाई जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं तो डोंट थिंक ओनली एंड ओनली ऑन द डिविडेंड पार्ट एंड डिसाइड ऑन द पार्ट ऑफ डिविडेंड द कंपनी इज गुड और बैड। नो, प्लीज गो ऑन द पार्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग में से ही हम कल उनको बोनस शेयर देंगे भाई, और बोनस शेयर्स कौन से होते हैं? विच आर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लियर? और क्या होता है बेटे, एक ओल्ड एज पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन कहां पर पैसा लगाएगा? वो ट्रेडिशनल उस पे जाएगा। 99.99% इवन ही विल नॉट गो टू द बैंक, ही विल गो टू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि उसके एक इमेज बना कि सबसे सेफ पार्ट वाला पोस्ट ऑफिस वाला है, और इज मोर कंसर्न फॉर द रेगुलर इनकम एंड सिक्योरिटी, वो दो को इंपॉर्टेंस देता है। फिर कुछ लोग होते हैं जिसको दोनों चीजें चाहिए, वे वो बॉन्ड्स पे जाएगा, डिवेंचर पे जाएगा, कुछ और प्रेफर करेगा। एक इक्विटी शेयर होल्डर होता है जो गेम खेलता है, अब वो क्या करता है, उसको एक में से पैसा दूसरे दूसरे में से तीसरे में लगाना है। अब आप इनकम टैक्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो बीकॉम वाले होंगे, तो उसमें कैपिटल गेन भी पढ़ा होगा, तो उसको मालूम है कि इसको कितना 8 साल तक कैसे कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, वो उस पे जाएगा। तो वो तरह के लोग पर्सन डिविडेंड के लिए कंसर्न नहीं होते, दे आर मोर कंसर्न फॉर द कैपिटल गेन। दे आर मोस्ट कंसर्न, जो टैक्स ब्रैकेट में ज्यादा जाएगा तो टैक्स ज्यादा देगा भाई, तो वो अपने एंगल से अपना अपना गेम खेलेंगे। तो यहाँ पर ये बताता है कि भाई हमको एक स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग भी बना के चलनी है,
और उसके हिसाब से हमको इसका डिसीजन लेना पड़ता है। एंड नेक्स्ट जो इसमें आगे चलती है वो आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस स्लाइड को बाद में डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक करेंगे। तो अब यहाँ पर आ गया, दो वर्ड आते हैं बेटे, एनालिसिस एंड सेकंड इज दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। So is there any difference between the analysis and interpretation, or both are same? Analysis is concerned with simplification of financial data by proper classification of giving in financial statement. भाई आपने वो 80 5 लाख से 20 1 लाख से किया, और इंटरप्रिटेशन में क्या किया फिर आपने? भाई इंक्रीज इन टर्म्स 5, इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट 4 टाइम्स। फिर डिसीजन वो कि आपने इंटरप्रिटेशन किया, और इंटरप्रिटेशन का एक इम्पैक्ट ये रहता है, इट इज ऑलवेज ए पर्सनल जजमेंट। व्हाट आई थिंक you may be thinking otherwise. Clear? I am employee, you are my employer, so I am expecting increase in the salary, but you are thinking from another point of view. ठीक है? तो ये पर्सनल जजमेंट वैसा होता है, परंतु वी हैव टू गो फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अभी थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो दो टॉपिक कवर होंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो हमने 3 स्टेटमेंट्स की बात कही, तो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देयर इज नो इशू, नो डिस्प्यूट। All statements to be prepared as per our accounting period. If it is a calendar year on 31st of December, and if it is a financial year on 31st of March. Clear? और बेटा इसमें जितने भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होंगे, we have to adjust all. We have to adjust all. Financial statement disclose both facts and opinion. अभी फैक्ट्स भी बता रहा था और ओपिनियन भी बता रहा था। अब तीनों चारों तरह के इन्वेस्टर हैं, अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। जो पर्सन पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा रहा है, रिटर्न उसको कम आ रहा है, परंतु ही इज हाईली सेटिस्फाइड। ठीक है ना, उसका अपना ओपिनियन है। एक बंदा कहता है जी मुझे रेगुलर इनकम चाहिए, वो डिविडेंड में कंसर्न है। एक पर्सन कहता है मुझे कैपिटल गेन पे ज्यादा जाना है, वो किस पे इंटरेस्टेड है? दूसरे वाले पे इंटरेस्टेड है। आपको मालूम है ये गेन वगैरह कैसा होता है? स्टॉक मार्केट का गेन वगैरह कैसा होता है, मालूम है थोड़ा? स्टॉक मार्केट कैसे खेलते हैं, मालूम है थोड़ा? चलो एक छोटा एग्जांपल सुनेंगे इजीली। छोटा एग्जांपल है, कभी इसको पेपर में लिखें। भाई हम एक पिंजरा लेके आए। ये क्या लिए? पिंजरा लेके आए। और मैं बोलता हूँ भाई जिस जिसके पास भी बंदर है, वो बंदर हमारे को दे जाओ, 200 रुपए पर मोंकी के हम आपको देंगे। तो आप सभी लोग आसपास से मोंकी लेके आए और 200 रुपए में हमारे को जमा कर दिया। चलिए, फिर हमने थोड़े दिन के बाद फिर बोला, नाउ इफ यू वुड लाइक टू सेल द monkeys टू अस, यू कैन सेल एट 500। ठीक है? और भाई जो कोई हमारे से लेना चाहे, ले तो हम उससे 500 में लेंगे, परंतु वो हमारे से 400 में ले सकता है। वो हमारे से कितने में ले सकता है? 400 में ले सकता है। तो फिर आप उस मंकी को 400 में खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? 500 में बिक रहा है आपका, तो आप फिर खरीदोगे। फिर मैं इसको बोल देता हूँ भाई आप मंकी हो गया 2000 रुपए का। अब भाई 2000 का तो हम खरीदेंगे और 1800 में हम बेचेंगे, तो आप 1800 में भी करेंगे। तो मार्केट में तो भाई देखो शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा भी और घटेगा भी, और जब शेयर बढ़ते हैं तब भी लोग खरीदते हैं, और जब घटते हैं तब भी खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि घटते टाइम खरीदने वाले लोग पागल है, या जो बढ़ते टाइम खरीदने वाले लोग पागल है, ऐसा नहीं है। उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, वो उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है ना? तो वो उसके हिसाब से गेम करेंगे। तो यहाँ पर अपना अपना ओपिनियन है सबका। क्लियर? वो कोई करता है, कोई शॉर्ट टर्म खेलता है, कोई लॉन्ग टर्म खेलता है, जैसे आपने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से। So financial statements are prepared on the concept of going concern that business will continue for a long period. उसके बेस पे बनाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिकॉर्डेड फैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। हमने इसको कहां से निकाला बेटे? ट्रायल बैलेंस से उठाया, उससे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसी से हमने बैलेंस शीट बनाई, और उन्हीं से हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। बाहर से हमने इसमें कुछ नहीं लिया। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर जनरली अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। इंक्रीज डिक्रीज एनालिसिस सबका अपना अपना ओपिनियन है, और सभी लोग उसको अपने अपने एंगल से एनालाइज करेंगे। क्लियर? कोविड का टाइम था, प्रॉफिट कम हुआ, या किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया और डिविडेंड कम दिया, पहले वो 10% देते थे, इस बार 2% दिया, इज इट हेल्दी साइन और बैड साइन? अगेन इट इज हेल्दी साइन, क्योंकि बहुत सारी कंपनी तो प्रॉफिट तक में सोच नहीं पाई, उन्होंने फिर भी डिविडेंड तो दिया।
ठीक है, तो हर बार किसी चीज को सिर्फ परसेंटेज पे कंपेयर करना अच्छी बात नहीं है। मेजोरिटी ब्यूरोक्रेट्स जो आते हैं वो 40% 45% वाले आते हैं अभी, वो कोई 90% वाले नहीं है। तो 90% वाला ही बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये सेम बातें रहेंगी। तो जब हमने ये सारा किया, स्टेटमेंट्स बनाया, तो इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये। और इसमें ऑब्जेक्टिव है टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, मीन हाउ मच प्रॉफिट कैन बी अर्न बाय अस, हाउ मच प्रॉफिट कैन बी अर्न बाय अस। दो मशीनरी है बेटे, एक मशीनरी 1 करोड़ की है, दूसरी मशीनरी 1 करोड़ 30 लाख की है। और जो मशीनरी 1 करोड़ 30 लाख की है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट लेस है देन 1 करोड़। तो कौन सी मशीनरी खरीदनी चाहिए, 1 करोड़ वाली या 1 30? देखो भाई, अगर हमारा काम भी थोड़ा बहुत है फिर तो 1 करोड़ वाली से भी चलाएंगे। अगर हमारा ब्रेक इवन जल्दी बनता, बड़ी पे जाता, तो दूसरी पे जाएंगे। तो एंगल है सोचने के अलग है। तो हम यहाँ पर हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो इन्वेस्ट कर रहा है पर्सन, ही इज मोर कंसर्न व्हाट इज द रेट ऑफ। एक थंब रूल है बेटे कि किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने के लिए कौन सा टूल अप्लाई किया जाए, रेट ऑफ रिटर्न। इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कैपिटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन इट इज ओके, एंड इफ इट इज लेस देन दैट इट मींस इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसी में हमने कहा भैया, फिर हमने टू असेस द मैनेजरियल एफिशिएंसी, भाई हम जो डिसीजन लेते हैं कितना रिटेन अर्निंग में डाला जाए, कितना इक्विटी का किया जाए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा पैसा उधार का लेना चाहिए, प्रेफरेंस कैपिटल इशू करना चाहिए, डिवेंचर इशू करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो मैनेजमेंट अपने हिसाब से अलग अलग एंगल से डिसीजन ले। टाइम बचा तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा और फिर आपको खुद लगेगा भी जरूरी नहीं है कि कम इंटरेस्ट पे लोन लिया जाए, कई बार हाई रेट इंटरेस्ट पे भी लोन लेके बिजनेस करना पड़ता है। फिर कहता है दी फैसिलिटेट इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन समझते हैं, इंट्रा एंड इंटर फर्म। इंट्रा होता है बेटा विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और इंटर होता है एबीसी हैज बीन कंपेयर्ड विद एक्स वाई जेड रामश्याम गीता सीता एक्सेट्रा। फोरकास्ट एंड प्रिपेयर बजट, हमको बजट बनाना पड़ेगा भाई। और बजट ऐसा नहीं कि सेम को फिगर को उठा के 2% 10% से इंक्रीज कर दो, नो, you should go for the forecast, what kind of the changes or what kind of the issues, what kind of the environment is taking place in the coming days, ठीक है ना। और अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ की रिसोर्सेज होते हैं। की रिसोर्सेज समझते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, who are in demand more but we have limited resources. Sometimes the cash may be limited resources, sometimes the human resource may be the limited resources, sometimes the raw material may be the limited resources, sometimes the electricity may be the limited resources. तो हमको क्या करना होता है, जहां पर हमको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उन रिसोर्सेज को वहां पर यूटिलाइज करना चाहिए। जहां पर उसमें मार्जिनल एफिशिएंसी ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो उनको वहां पर यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से सारे यहाँ पर करेंगे। अब दो तरह के कंपैरिजन है बेटा जो पेपर में मोस्टली आते सभी को होंगे, परंतु वहां जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। एक होता है बेटा इंटर फर्म एनालिसिस और दूसरे इंट्रा फर्म एनालिसिस। तो ये तो इंटर फर्म इंटर तो मैंने बता दिया, दोनों सिंपल रहेंगे आपको। इंटर क्या है, इंटर है एबीसी इज कंपेयर्ड विद एक्स वाई जेड। इंट्रा क्या, हमारे 6 डिपार्टमेंट है भाई, 10 डिपार्टमेंट है, तो हम उनकी एफिशिएंसी आपस में कंपेयर करें, वो इंट्रा है। तो यहाँ पर कहता है फाइनेंशियल एनालिसिस जो आपने किया उसने आपको क्या बताया, व्हाट डू इंटरनल यूजर्स यूज इट फॉर। जो इंटरनल यूजर हैं, इंटरनल यूजर कौन थे बेटा, इन्वेस्टर्स वगैरह। तो वो इससे क्या डिसीजन, उनके लिए क्या बेनिफिट हुआ इन स्टेटमेंट्स को बनाने का। तो उसमें कहता है कि इट हेल्प्स देम इन केस ऑफ प्लानिंग इवैल्यूएशंस एंड कंट्रोलिंग कंपनीज ऑपरेशंस। तो हर बिजनेस जब भी आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर प्रॉपर प्लान। प्लानिंग जानते हैं सभी लोग, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, बाय मिड टू बी डन। तो वो उसका करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है। You have to find out the number of the alternates and then you have to go for the evaluation of which alternate is best for me. Then you have to go for controlling. तो दो फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। दोनों, प्लानिंग इज फर्स्ट एंड कंट्रोलिंग इज लास्ट, बट both the functions are closely associated. कंट्रोलिंग और प्लानिंग आर क्लोजली एसोसिएटेड। अगर कंट्रोलिंग पे आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर प्लानिंग बेकार हो जाएगी। अगर आपने इसमें करेक्टिव एक्शन नहीं लिया फिर वो सारी की सारी प्रोसेस यूजलेस हो जाएगी। इसी तरह से उसमें कहता है जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, बाहर वाली पार्टी होती है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं भैया,
वो देखेंगे कि व्हाट इज देयर पास्ट परफॉर्मेंस, व्हाट इज देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस, व्हाट मे बी देयर फ्यूचर परफॉर्मेंस। ठीक है ना? तो बाहर वाले लोग, मान लो आप इन्वेस्टर हैं, आप किस में इंटरेस्टेड हैं? बिजनेस कैसे करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई मार्केट में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नई मशीनरी लगानी चाहिए, 1 करोड़ वाली मशीनरी लगानी चाहिए, 1 करोड़ 30 वाली मशीनरी लगानी चाहिए, उस बारे में सोचेंगे। और जो एक्सटर्नल होंगे वो सोचेंगे भी आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एफिशिएंसी क्या है, उसके बेस पे डिसीजन लेंगे। तो ये जो स्लाइड है, अब बेटा ये जो डिसीजन लेते हैं जब हम, तो आप में से कुछ लोग साइंस वाले होंगे, तो आप स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन लगाते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे भी कुछ पता चलता है, पता चल जाता है। ठीक है ना? और इसी तरह से हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? ट्रेंड। कल हमने आपसे इंश्योरेंस का केस पूछा था, तो आप ही ने बोला था कि जिसकी परफॉर्मेंस कम थी उसको हमने होल्ड करना चाहिए। तो हमने ट्रेंड देखा उसमें, इंक्रीजिंग ट्रेंड एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड। ठीक है? एक हम चार्ट वगैरह बना के भी देखते हैं, चार्ट से भी पता लग जाता है। एक हम रेशियो एनालिसिस करते हैं, मैंने बताया था कि दैट इज वन ऑफ द टेक्निक्स टू एनालाइज। बहुत सारी बड़ी टेक्निक है। और फिर दो चीजें हैं बेटा इसमें, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल। अब जो पूरा चैप्टर आएगा पेपर में, लास्ट टाइम के में जो 3 में क्वेश्चन था इसके ऊपर, न्यूमेरिकल नहीं था, तो उसमें था कि हॉरिजॉन्टल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस है, और विच वन टेक्निक शुड बी अप्लाइड एंड व्हाई, विच वन टेक्निक शुड बी अप्लाइड एंड व्हाई। क्लियर? अब ये देखो भाई, दो एनालिसिस हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कौन सा था बेटा? दिस वन और दिस वन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सी होती है? ये वाली है या सीधे वाली है? ये वाली। जब हम इसके वाली बात करते हैं तो ये क्या करता है बेटे? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2020, 21, 22, 23, 24, 25, इस तरह से बात कर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या है? फिगर्स होंगे, परंतु वो कंपैरेटिव फॉर्म में इस तरह से दिया जाएगा। इज इट ओके? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। अगर आपको ये दो चीजें याद रह गई, फिर आप बिल्कुल नहीं इसको बोलो। और दूसरे में कहते हैं वर्टिकल। अब ये इस तरह से, किस तरह से? वर्टिकल है। भाई साहब ने कंपनी में पैसा लगाया 1000 करोड़, सर ने पैसा लगाया 100 करोड़। बुरा मत मान जाना भाई। प्रॉफिट आया तो ऑब्वियस है कि उनका नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है, इनका प्रॉफिट कम होगा। तो ये जरूरी नहीं कि उनकी कंपनी अच्छी है। जब मैं इसको ईच कंपोनेंट से कंपेयर करके देखा, हो सकता है रेट ऑफ रिटर्न इन कंपनी फॉलोड बाय सर मे बी बेटर देन द अदर। तो उस केस में हमको कौन सा एनालाइज बेटर रहता है? वर्टिकल एनालाइज। आउट ऑफ 100 परसेंटेज वाइज कितना कितना लगा हुआ है, आउट ऑफ 100 परसेंटेज वाइज कितना कितना पैसा उसमें लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल एनालिसिस। तो दो पेपर में कंफ्यूज मत होना प्लीज। हॉरिजॉन्टल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जो वर्टिकल है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हर चीज को हम परसेंटेज में लेंगे, और तो लेंगे उसी में से, उसके वाले में से। ठीक है? अब उनका 1000 करोड़ है, तो 1000 करोड़ में से कितना कितना पैसा कहाँ लगाया? भाई फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाना दैट इज गुड, but if you are not holding sufficient funds for the working capital, again it is bad, again it is bad। तो हमको उन सारी चीजों की रिप्लाई चाहिए। और इंक्रीज इन द सेल इज गुड, but with the increase in sales the profit should go up or less, should go up। ठीक है ना? और भाई उसके कंपैरिजन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और दूसरे जो कंपोनेंट हैं, हमें उनके बारे में भी साइड बाय साइड डिसीजन लेना पड़ेगा। इज इट ओके? थर्ड टेक्निक है दैट इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। तो वो मेरे ख्याल से आपके पार्ट पे है नहीं सिलेबस में, अभी मैं इसको एक बार चेक करूंगा, होगा तो फिर कराएंगे। अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आपने पीपीटी खोला हुआ है? एक बार ऑनलाइन ज्वाइन करके खोल लो सभी लोग, प्लीज ज्वाइन ऑनलाइन। और इसको म्यूट कर लेना बेटे, ऊपर स्पीकर। आपने खोला है? My friends all sitting online, please try to understand it with the help of suitable examples, and in case numerical is coming, it will be in the same format। चलो करें अब इसको। अब हमारे पास दो फिगर दिए हुए बेटे 2020 एंड 21 के। We have given the figures for 20 and 21। ठीक है जी?
अब इस केस में हमको क्या करना होता है, कंपैरेटिव जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं बेटे, वी ऑलवेज प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। जो हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरा भी बनाते हैं वो भी कंपैरेटिव फॉर्म में ही होता है। तो हमने इसमें करना क्या है, हमारे पास एक बेस ईयर होता है और एक कौन सा ईयर होता है, करंट ईयर। बेस ईयर कौन सा ईयर होता है, लास्ट ईयर। बेस ईयर कौन सा ईयर होता है, लास्ट ईयर। बेस ईयर इज द लास्ट ईयर, वो होगा। तो करंट ईयर में से बेस ईयर लेस करेंगे तो क्या आएगा बेटे, इंक्रीज और डिक्रीज आएगा। देयर विल बी सम इंक्रीज और डिक्रीज। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इंक्रीज वालों को ओपन छोड़ दो, डिक्रीज वाले फिगर्स को ब्रैकेट्स में रख लो। अब उनके आगे प्लस माइनस करेंगे तो खिचड़ी सा बन जाएगा। तो नॉर्मली हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, नेगेटिव फिगर्स विल बी टेकन इनटू ब्रैकेट्स। तो फिर हम इस तरह से इसको इंक्रीज और डिक्रीज लिया, और जब हमने इसको इंक्रीज और डिक्रीज लिया तो फिर इसमें किसी का इंक्रीज आएगा और किसी का डिक्रीज आएगा। उस इंक्रीज और डिक्रीज को बेस ईयर मींस प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर दो, प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाई 100। so you will get the figure in terms of percentage, you will get term figures in terms of percentage। फिर आपके पास वो जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगी। and why to take it in terms of percentage, the reply is it is easy to understand, it is easy to express and easy to understand। कंपेयर करना भी थोड़ा इजी रहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके 10th में कितने नंबर थे, 12th में कितने थे, तो सारे नहीं बताएंगे, तो आपको परसेंटेज एकदम से याद है कि मेरी परसेंटेज कितनी है। तो इसलिए परसेंटेज इज ऑलवेज इजी टू रिमेंबर। तो इस केस में जब हमने इसको किया तो पहले हमने क्या लिया भैया, बेस ईयर प्रीवियस ईयर। अब आपने ये देखना कि क्वेश्चन में ऊपर 20 21 21 बाई उल्टा भी लिख सकते हैं एग्जामिनर, तो उस चीज को ध्यान कर लेना अभी। कभी इंक्रीज डिक्रीज में चला जाए, डिक्रीज इंक्रीज में चला जाए, और एनालिसिस ही अपोजिट हो जाए, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर हमने उसका परसेंटेज और इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, और उस इंक्रीज और डिक्रीज को किससे डिवाइड करना बेटे, फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। और अब उसको फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर से जब मैंने इसको डिवाइड किया 23,500 से, तो द फिगर इज कमिंग 48.9 नेगेटिव, 48.9 नेगेटिव। और फिर मैं इन सारों का इसको इंक्रीज और डिक्रीज मैंने निकाल लेना, और फिर इसके बेस पे मैंने इस पे डिसीजन लेना कि व्हाट इज हेल्दी और व्हाट इज अनहेल्दी। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल में पता लगे कैसे निकालेंगे चीजें। दो चीजें किया बच्चा, 2 साल के फिगर दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स को बेस ईयर मानेंगे, करंट में से बेस ईयर लेस करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। उस इंक्रीज और डिक्रीज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाई 100, यू विल गेट इट इन परसेंटेज। उसको परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज लो, नेगेटिव फिगर्स को ब्रैकेट्स में रख लो, नेगेटिव फिगर्स को ब्रैकेट्स में रख लो। इज इट ओके? ये दूसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिकल उसमें, तो एक पॉइंट आगे आएगा, फिर उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अब ये क्वेश्चन है बेटे एक आपके सामने, इसमें जब हमने इंक्रीज और डिक्रीज निकाला, इसको ध्यान से पढ़ो। अब इसमें जो हमने इंक्रीज और डिक्रीज देखा, तो नेट सेल इज इंक्रीज्ड बाय 8.3%, नेट सेल इज इंक्रीज्ड बाय 8.3%, and net profit is decreased by 21.9%. There is a decrease in net profit at the rate of 21.9. Clear? So is it healthy or unhealthy? भाई आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है 8.3% और नेट प्रॉफिट का क्या हुआ, 21.9% डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना? तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। भाई सेल्स में इंक्रीज होने से प्रॉफिट में इंक्रीज होना चाहिए था, और मान लो कुछ हो भी गया तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के बराबर वो लॉस में जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो रही है। और प्रॉब्लम कहां पर आई हमने कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज्ड बाय 14.3। तो भैया हर चीज का इंक्रीज अच्छा नहीं होता, मेरे जैसे वेट इंक्रीज होना अच्छा नहीं होता, समझ में आया? तो किस चीज का इंक्रीज होना अच्छा होता है और किसका डिक्रीज होना अच्छा होता है, उसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट वाले कंपोनेंट है उनका डिक्रीज होना अच्छा है, और जो रिवेन्यू वाले कंपोनेंट है उनका इंक्रीज होना अच्छा होता है। इसी तरह से मान लो मैं परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात करता हूँ, अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है ज्यादा, हालांकि उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर हो रहा है तो क्या इंडिकेट करता है, सेल्स रिटर्न अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या इंडिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे साइन ऑफ इंटरोगेशन।
अगर परचेज रिटर्न ज्यादा हो रहा है तो ये हेल्दी साइन भी हो सकता है कि जो मेरा इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल वाले हैं वो ठीक से चेक कर रहे हैं। वो सेंस को आपने जरूर नोटिस करना है, तो ऐसे ही सीधा लिख देंगे। तो इसने इसमें बोला कि द ग्रोस मार्जिन था वो नेगेटिव आ गया, ग्रोस प्रॉफिट नेगेटिव आना दैट इज नॉट हेल्दी साइन, दैट शुड बी इन पॉजिटिव। ठीक है, जब ये स्टेटमेंट आएगी तो आपसे पूछता है एग्जामिनर कमेंट अपॉन दिस, तो वो कमेंट कैसे करेंगे बेटे, इंक्रीज और डिक्रीज निकालेंगे, फिर उसके नेचर को समझने की कोशिश करना है और उसके बेस पे आप इसमें डिसीजन लेंगे। So sorry to interrupt. Hello. सर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। So sorry to interrupt, but can you please mute Mr. Sanjeev Gautam? सर प्लीज म्यूट। तो ठीक है भाई, यहाँ क्लियर हो गया ये। अब इसी तरह से आगे वाला जो पार्ट है, हॉरिजॉन्टल वाला क्लियर है सबको? एनी डाउट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्टिकल। वर्टिकल कैसा बेटे? सीधा उसमें लेके चला, और जब हम इसको सीधा लेके चले तो ये कहता है फॉर ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच आइटम ऊपर से नीचे जितने हेड होंगे इट विल बी टर्म्स एज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ सिग्निफिकेंट टोटल। जो नीचे का टोटल होगा, जैसे हमने इनका बोला था 1000 करोड़ और सर का 100 करोड़, तो 1000 में से कितना कितना ऊपर पैसा लगा हुआ है उसकी परसेंटेज निकालेंगे। सेम इनकम स्टेटमेंट जाएंगे तो कितना का सेल होगा, मान लो किसी का सेल हुआ भाई 2000 करोड़ और किसी का सेल हुआ 1500 करोड़, हो सकता है प्रॉफिट 1500 करोड़ वाले का ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर ना? मार्जिन के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, पेरिशेबल था बेचना पड़ा खराब हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको परसेंटेज में ले लेते हैं कॉमन साइज बनाने के लिए। चलिए, ये ट्रेंड वाला बीच में एक एग्जांपल वैसे ही है बेटे, ट्रेंड में आप निकालोगे इधर इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड, इस तरह से। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने वर्टिकल का। अब दो फिगर है हमारे पास, द ईयर 2021 एंड 2020, फिगर्स ऑफ 2021 एंड 2020। तो 2020 का फिगर कितने हैं सम टोटल? 3,87,000। और 21 का कितना बेटे? 483। तो ये जो परसेंटेज है ना 17, ये तो हमने ग्रोथ ले लिया, तो इसका एग्जैक्ट लेंगे आप यहाँ पर। तो इनको कैसे निकाला हमने भाई? जो 82,000 वाला पहला फिगर था उसको किससे डिवाइड किया? टोटल ऑफ 2021 वाले से, और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। और जो नेक्स्ट वाला फिगर है 2020 वाला, उसको उस साल के 20 वाले फिगर को सम टोटल से नीचे वाले से डिवाइड किया और हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और फिर एक टेबल बन के आ गया हमारे पास जो हमारे को इंडिकेट करता है कि इसका एक्चुअल में इंक्रीज और द परसेंटेज वाइज कितना कितना पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर? अब आपको लगेगा कि सर इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, नहीं, इसको जब एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि इसमें से कितने परसेंट पैसा कहाँ का लगा। जैसे इसने बोला ना अकाउंट्स पेबल में कितना पैसा लगा हुआ भैया? 16%। ठीक है ना? वेजेस पेबल कितने हैं? 7%। ठीक है भाई, वेज किसी का कम पे है तो अच्छी बात। तो ये डिसीजन मेकिंग में इस तरह से एक साल के बारे में बता रहा है, और हॉरिजॉन्टल किसके बारे में बता रहा है? नंबर ऑफ ईयर्स। वो किसके बारे में बता रहा है बेटे? नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? ये ट्रेंड वाला केस है, ठीक है ना? ट्रेंड वाला आप सभी लोग जानते हैं आपस में। एक ये ट्रेंड जो बनता है बेटे, इंक्रीज और डिक्रीज का जो ट्रेंड बनता है हमारा, ठीक है ना? तो वो मैंने आपको पहले बताया कि वो हमको कॉमन सेंस में याद रखना है किस चीज का इंक्रीज होना अच्छा है, किस चीज का डिक्रीज होना अच्छा है। एंड इट्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर बिजनेस। भाई बैंकिंग का काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो सभी के कंपोनेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? तो फिर उसके हिसाब से हमने बात कर ली। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है भैया? अब क्वेश्चन आता है कि ये जो रेशियो वगैरह जो आपने निकाले, स्टेटमेंट बनाई, आर दिस गुड? जो कंपैरिजन किया आपने, एनालिसिस किया, इज इट गुड? गुड तो है ही है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस टू टेक्निक्स आई एम एबल टू नो इधर आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और इन द रॉन्ग डायरेक्शन. The another question is either these techniques are only and only for the internal users
और these are also good for the external users. तो हमने internal users को किसमें बताया था बेटे? It is going to help them for planning, evaluation and controlling. तो जो मैंने बताया था कि 8 point something % increase in the sales but decrease in the profit is there. So then we have to find out the reasons why our cost is going up. Why our cost is going up? जो हमने पहले एग्जांपल किया था वो 1 करोड़ और 130 वाला, फिर हमारे माइंड में फैक्टर्स आएंगे, अभी हमने मशीनरी सस्ती ली और तो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा थी, समझते ना? हमने पैसा तो बैंक से ले लिया पर तो ज्यादा इंटरेस्ट पे ले लिया। ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन के केस बनते हैं। आपने ज्यादा पैसा ब्याज पे लगाओगे तो इंटरेस्ट में तो जाएगा ही जाएगा। तो वो कंपोनेंट फिर आप सभी में कंपेयर कर रहे हैं इधर उधर से। और इंटरनल वाला क्या करता है बेटा इसमें? इंटरनल वाले ने तो प्लानिंग और उसमें काम किया। अब एक्सटर्नल वाला क्या देखता है? साहब आपका लास्ट टाइम में प्रॉफिट कितना था, अब आपका प्रॉफिट डिक्रीज होता जा रहा है और फ्यूचर में आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर पर्सन आज किसी कंपनी में पैसा लगाएगा तो ही इज मोर कंसर्न फॉर द टुडेज प्रॉफिट और फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट। ही इज मोर कंसर्न फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट्स। और उसके लिए वो क्या करेगा बेटे? ही विल अप्लाई सर्टेन टूल्स to forecast either the company is in position to increase their profit or not. और डिविडेंड वाला जो पार्ट है, कंपनी ने अभी तक डिविडेंड कम दिया, मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ रिजर्व्स हैं, तो कंपनी में इश्यू बोनस शेयर्स। तो मेरे को डिविडेंड तो कम है परंतु मेरे को नियर फ्यूचर में क्या मिल जाएगा? बोनस शेयर्स मिल सकते हैं। तो वो सारे एंगल से डिसीजन लेता है, सिर्फ और सिर्फ एक डिविडेंड और पार्ट के ऊपर डिसीजन नहीं लेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है भाई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने किया, एनालाइज किया, तो इज इट फ्री ऑफ लिमिटेशंस? भाई ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे क्या 90% लोग इसको लिखे नहीं पाते और है कुछ भी नहीं इसमें। अब सीधी सी बात हमने कल भी किया था, जो आपने स्टेटमेंट्स बनाया था बच्चा, वो किसके बेस पे बनाया था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया था। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टेबल रहते हैं या चेंज भी होते रहे हैं? चेंज भी हुए हैं। और दूसरी बात ये थी कि जो अकाउंटिंग की, इट वाज बेस्ड अपॉन सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड दैट वाज बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशंस। क्लियर? और मैंने अभी बोला था कि सारे फिगर मैंने ट्रायल बैलेंस से लिए, उससे मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उन्हीं से मैंने बैलेंस शीट बनाया, उन्हीं से मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। और वो सारे के सारे किस बात पे बने थे बेटे? सर्टेन अजम्पशंस। तो एक तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अजम्पशन के बेस पे है और आप उसके बेस पे इसको बनाएंगे। इसी में तो कहता है कि आप कहते हैं डेप्रिसिएशन लगा लें, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट डिसाइडेड बाय यू, इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन एंड अदर्स। तो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? कभी कंप्यूटर वगैरह के ऊपर 100% डेप्रिसिएशन था ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट वाज विलिंग टू प्रमोट कंप्यूटर ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी जी, ठीक है ना? परंतु आज अलग अलग है। तो ये जो एस्टिमेशन बात बात चेंज होते रहे, तो आप किस क्या कर रहे हो? आप तो कंपैरिजन कर रहे हो। तो जब उनके एस्टिमेशन ही कंपैरिजन में चेंज होते जाएंगे, तो डू यू फील दैट योर कंपैरिजन इज गुड? योर कंपैरिजन कैन नॉट बी गुड। जो मैंने बच्चे का एग्जांपल बताया था, अगर वो बच्चा 3 स्कूल ही बदल ले बार बार, तो फिर क्या उसका कंपैरिजन ठीक है? नहीं है। तो उसका था भी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो इंप्रूव कर रहा है, डाउन कर रहा है उसी हिसाब से। और भी जब हम बुक्स बनाते हैं, तो जैसे हमने कल स्टॉक की बात किया था एक बार कि प्रॉफिट निकालने के लिए कौन सा मेथड रहेगा, तो हमने कहा था कि एवरेज स्टॉक ले सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब आप इंटर फर्म कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपने दूसरे का सारा मालूम है कि उसने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है? सारी नहीं मालूम होती। आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के और उसके बेस पे कंपैरिजन लगा दोगे, तो आपके डिसीजन अच्छे नहीं आएंगे। और कुछ बिजनेस होते हैं सीजनल नेचर के, बिजनेस में प्रॉफिट तो पूरा है और उनका बिजनेस होते ही साल में 2 महीने है। जैसे पटाखा वाले होते हैं ना, आजकल तो खैर सारा साल ही चलता रहता है, शादी हो कुछ भी हो। नॉर्मली पहले दिवाली दशहरे पे बिकता था, तो सारा साल वो स्टॉक करते हैं। तो उनका जो मैनेज करने का तरीका होगा, जो हमारा जनरल तरीका होगा, दोनों डिफरेंट होंगे। तो सीजनल बिजनेस है उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, जो विंडो ड्रेसिंग करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? विंडो ड्रेसिंग। क्या होती है विंडो ड्रेसिंग? मैनिपुलेशन विद द फिगर्स, मैनिपुलेशन विद द फिगर्स। तो जब हमको पता है भी लोग इन्हीं फिगर्स के ऊपर हमको कंपेयर करेंगे, तो फिर हम इनको इधर उधर थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। अब इसमें एक चीज मैंने फर्दर टाइमिंग मिस किया है, वो है ट्रेंड एनालिसिस। आप ये मेरे से ले लेना, तो उसमें आपको एग्जाम्पल है।
ट्रेंड एनालिसिस में भी ये देखना है भाई वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, और it is increasing by 20%, somehow it comes down at 18%, 16%, then we have to remember the economic situation during that time also. Clear? If you are willing to enter in a new market, for the timing you have to compromise with the profits. Yes or no? समझते हैं समझते हैं, कम शेयर्स इशू करते हैं, शेयर शुड बी इशूड एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, प्रीमियम करना चाहिए साहब, परंतु कई बार हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, और जैसे हम अपने एम्प्लॉयज होते हैं उन एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए कि ताकि उनमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए, तो उनको स्वीट इक्विटी देते हैं, स्वीट इक्विटी होती है द शेयर्स आर इश्यूड टू दी की एम्प्लॉयज, ठीक है ना, लेस देन मार्केट प्राइस। तो इस तरह की टेक्निक्स भी हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है। एक राइट इश्यू भी करते हैं कई बार हम, राइट इश्यू होता है द शेयर्स आर ऑफर टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, तो उनके सबके पीछे लॉजिक होता है भाई। राइट इश्यू इसलिए करते हैं क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि शेयर नया मार्केट में शेयर इशू करने के लिए क्या क्या कॉस्ट पड़ेगी हमारी, जैसे आप प्रोस्पेक्टस निकालोगे, बैंक से टाई अप करोगे, परमिशन लोगे, सब कुछ होगा। इसमें एक चीज मिसिंग रह गया था डिविडेंड वाले में। मान लो बेटा आपको 100 रुपए का डिविडेंड मिलता है, कितने का मिलता है? 100 रुपए का। अगर आपको 100 का 100 रुपए डिविडेंड मिल जाता है तो आप उसको रीइन्वेस्ट करोगे, तो कितने का रीइन्वेस्ट होगा? 100 का, परंतु एक्चुअल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई पहले तो हम टीडीएस काटेंगे, कटेगा नहीं कटेगा? चलो डोमेस्टिक के केस में माफ कर दिया, फिर आप वो पैसा लेके आओगे, फिर आप उसको इन्वेस्ट करोगे, तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, तो 100% वो उससे कम होगा। तो जब वो पर्सन सेक्रीफाई करता है तो उसके माइंड में ये सारे कंपोनेंट होते हैं उस टाइम पे, क्लियर? तो कुल मिला के वो देखता है कि मुझे ओवरऑल में गेन और लॉस क्या होता है, और सीधी सी बात होती है कि देखो सारे के सारे इन्वेस्टर सेम सेगमेंट के कभी नहीं होते, क्लियर? सारे के सारे रेगुलर इनकम के लिए नहीं होते, सारे के सारे मार्केट में कैपिटल गेन के लिए नहीं होते, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। इससे पहले जिन्होंने बीकॉम किया उनको हमने पढ़ाया था कि फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल, जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए देन इट इज बेटर टू गो विद द फंडामेंटल, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म, सुबह खरीदा शाम को बेचा, देन यू शुड गो विद द टेक्निकल एनालिसिस। जो टेक्निकल वाले लोग भी होते हैं भाई, वो भी ऐसे आंख मीच के डिसीजन नहीं लेते, वो भी ये छोटे छोटे कंपेरिजन देखते हैं, उसमें वो देखते हैं कि किस कंपनी के पास कितने पैसे का ऑर्डर आया, कौन कंपनी डिवर्सिफिकेशन में जा रही है, किसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शॉर्टली चेंज हो रहा है, छोटी छोटी चीजों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, समझ में? तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटे, और आपको मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि हम लोग इसका न्यूमेरिकल सा शेप देख के नॉन कॉमर्स वाले छोड़ देते हैं। भैया ये है ही आपके लिए, इसमें कॉमर्स वाली चीज क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ क्या था, हॉरिजेंटल के में मैंने क्या किया बेटे कि दो फिगर में बांट लिया कॉलम में, एक लास्ट ईयर और एक करंट ईयर, ठीक है ना? जो करंट ईयर है उसमें से लास्ट ईयर लेस कर दिया भैया, फिगर आया इंक्रीज और डिक्रीज, उस इंक्रीज और डिक्रीज को किससे डिवाइड करना मैंने? लास्ट ईयर के फिगर को, जिसको बेस ईयर बोलते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100 किया। अब गलती कहाँ होती है? जैसे इस एग्जांपल में 21-20 लिखा हुआ था, और कई बार 20-21 लिखा होता है, तो उस टाइम में थोड़ा ध्यान कर लेना भाई फिगर उसने कैसे डाले हुए हैं। और वर्टिकल में मैंने क्या किया, जो सबसे सम टोटल नीचे वाला टोटल था, और जो ईच कंपोनेंट था, ईच कंपोनेंट वाज डिवाइडेड बाय द सम टोटल एंड इट वाज मल्टीप्लाइड बाय 100, मेरे पास फिगर आ गया। फिर इन टर्म्स ऑफ दैट आई कैन डिसाइड इट, इन टर्म्स ऑफ दैट आई कैन डिसाइड इट, इस तरह से हमने इसको निकाला। तो अभी हमको कौन से रूम में जाने के लिए बोला? 207 में। तो अभी हम लोग मूव करेंगे 207 की तरफ, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर टाइमली शुरू कर दें, ठीक है?